Hello, friends. Hello. We'll be starting our session soon, within next five minutes. Okay, so please join everyone. Hello, Srikanth sir. Hello. I think we should start with the session. Is it Yeah, fine? yeah. Priyanka ma'am, I think she's. Yeah, Yeah. hello. Hello, everyone. Hello. Good Hello, evening, ma'am. Srikanth. Hello. Yeah, good evening. So, sir has joined or not? Yes, Yeah, sir has already joined. So I think we should start with our session. yes, yes. Good evening, Yes. sir. Yes, yes. Good Good evening, good evening, sir. evening. Good evening, That, sir. good evening. Still 2 minutes are there. If you want, you can wait. Yeah. Yes, I we'll think we should. wait for 9 o'clock. 2 minutes. You said 8:30. You said I am ready. You can start right now. Also, I don't mind. Okay. Shrika, do one thing. Actually, you can send a message in all group that we are already started. Hello. Madam, no. Madam, your Yes, voice is not. Your just voice is put one breaking. message in all the groups. Yeah, I already have Inform all the Hello. groups. message. Yeah, I already have a message in all the Ask groups. everyone. Yeah, Yeah, okay, no issues there. Then you can. I think we should start. Everybody will join. Already 51 members have joined. So we can start. Okay, We can start, na sir. start. Hello, everyone. Good evening. Uh, I welcome you all from our NIMA OBGY Society. And let's start with a good new series of webinars with NIMA and Doctors Risk Medical Legal Services. We are fortunate to host this first and the very most important meeting and the best topic we got to start with is normal delivery, normal labor room, and abnormal outcome and medical legal pitfalls in OBGY. So, as we all know, clinical safety starts when we clearly understand our rights and our responsibilities and duties. Hmm. So, we can practice
full from our heart when we know all the responsibilities and the rights we got from the government, from the law. So I would like to ask Dr. Balaji sir to welcome our speaker, Dr. Arun Mishra sir. Yeah. Labor room is one of the most sensitive area in medical practice, where every minute, every decision, every document can have life-changing events. A normal labor can suddenly become a complicated, and at times, medical legal challenge arises not only from complication but from documentation gaps and delayed decisions. To enlighten us on the crucial subject, we are deeply honored to have with us Advocate Dr. Arun Mishra, sir, a senior advocate, decorated medical legal consultant, author, educator, and who has dedicated more than 2 decades to protecting and guideline the medical fraternity. He has successfully handled over more than 20,000 medical legal cases across India, including matter in Supreme Courts, state courts, and various tributaries. He is also the author of an authoritative 8-volume series on the law of medicine and a strong voice for legal awareness among the doctors. Sir, your work has empowered thousands of doctors to practice with greater confidence and legal awareness. We are truly privileged to have you with us today. Welcome, sir. Let us begin with enlightened session. Over to Shikant. Welcome sir. Welcome everyone. Welcome. So Thank you, Beta. Thank you. Yeah. sir, the word medico-legal or litigation has created such a big fear in our mind that every patient we find a litigation coming. So torch bearers like you are there to help us. That's why we are practicing fearlessly. So, sir, I would like to start from very basic question. What kind of legal permissions we have to seek from the government authorities to start with a labor room or OT? So before I start, let me answer your Srikanth, your question and naturally fear of the people in our Yes, country about litigation, about now violence and various other things while doing our regular practice. So before I start, let me, with my experience of 23 years and with lots of judgment backed by Honorable Supreme Court, High Courts, let me assure all my delegates here, do your job fearlessly. Even Honorable Supreme Court says, you are in a profession of saving a life. And our law is societal law. Our law is made for the society and betterment of the yes, society. So the law itself protects you in large. You will not find my doctors getting convicted in this country. It is only a fear of ignorance. So let me tell you all, my friend, without any fear, you continue your duty to save a life, give a life to the people. And rest assured, law is there to protect you and take care of you. Litigation are bound to come, but rest assured, you are going to be protected by the law. In today's session, I will definitely try to give you lots of evidence to confirm and rather authenticate my word, which I am sharing at very initial stage, that law is good for the doctor if you know it. So let's understand the law. So let me start with Srikant's first question. What are the basic requirements to start labor room, OT room, or whatever in short, smaller nursing home? See, yeah, in Maharashtra, we are governed by nursing home laws. So Nursing Home Act plays a vital role. Nursing Home Act very categorically and clearly are defined under the Act and Rules 2021, detail about starting any of smaller hospital, daycare center, or any establishment in healthcare. OPD center yet not required to register, but necessary to intimate. But IPD center, where you are going to admit a patient or do some procedure, you are legally bound to register with Nursing Home Act and follow the rules given under that. Any RMP means registered medical practitioner, can apply and get a registration from local authorities to start. So local authorities, wherever you wanted to open your hospital, including labor room and OT, just go and meet this officer, do a formality, see that you are following all rules of nursing home as defined under not only Act but also
amendment rules 2021, that how many beds, what are the area, what are the size, have got fire OC, have you got other licensing? If all there, you are definitely going to get a license. Once you got a license, you can start your hospital and start admitting a patient legally. So not to worry. Yes, to start a hospital, Nursing Home Act has very clearly defined कि क्या क्या चाहिए आप, what all instrument you need to start a labor. Very clearly defined, very specifically defined. If you don't have that rules, I will share with you. They have very clearly mentioned this instrument, this instrument, this instrument, this particular things. You just go through that rules and keep available all this in your labor room, in your OT room to start that, and just apply for a license. You will get a license and you can start your practice. Very simple requirement. So it is not very complicated to start a hospital or clinic in gynec practice if you just follow the rules and apply to the authorities. Okay. So, sir, I have one simple sub question for that. अगर किसी हॉस्पिटल को previously the local authority has permitted for the hospital, given NOC and all that, can they reject in next renewal term? And why? See, What are the things? I'll tell you, rejection need to be justified. Law very clearly Okay. says that if rejection is done, why it is rejected. They need to define the rejection. Unreasoned rejection does not stand, or just playing for killing a time, means just having an application Yes. of renewal but not answering. Again, it goes against them because we are now governed with different laws in this country. Maharashtra state government has already launched clear laws to make authorities responsible for everything. अगर उन्होंने स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर आपका काम नहीं किया तो, बट वी डोंट गो Okay. फॉर दैट रेमेडीज, लेकिन आप चाहते हो तो लॉज हैं, आप जाइए. Okay. अथॉरिटीज अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक्ट नहीं करता है तो यू कैन गो. नाउ सेकेंड, सपोज अथॉरिटी हैज रिजेक्टेड and that reason is absolutely non-tenable, you immediately appeal to state authority, क्योंकि नर्सिंग होम एक्ट के अंदर स्टेट इज अनदर पावर, अपीलिंग पावर, और स्टेट में Okay. मिनिस्टर्स ही बैठे हैं. And the moment you appeal, they are going to naturally admit your appeal, going to look, and they will direct to give you registration or renewal of registration. अगर आपके पास norms complete है तो Article 19 of Constitution itself authorizes you to do as a fundamental right to start a business, Okay. legal business, and all documentation, if everything is under frame, will be taken care by the authorities, and they cannot reject if you got all facilities available as per their requirement. Okay. Okay. So is it Yeah. necessary to have one MBBS attached to your hospital to start with the hospital? Law very clearly says that hospital, any RMP can be a RMO. BMS, BHMS, they are not barred. BHMS is also under the allopathic doctor. BMS, BHMS, BUMS, any graduate doctor, including MBBS. But the moment you talk about ICU facility, then rules 21 very clearly say that if you got ICU, then in ICU, MBBS RMO is mandatory. There you Okay. cannot play because it has already been expressed law and that is not been challenged. तो रूल्स अगर Yes. चैलेंज नहीं हुआ है और रूल्स एक्सप्रेसली मेंशन किया है तो वी नीड टू फॉलो. और वो रूल्स बहुत ही क्लियर है कि अगर आपके पास 24 आवर्स का आईसीयू है तो 24 आवर्स का कोई तो इंटर्निस्ट चाहिए, एनेस्थेटिक विजिटिंग है या और कोई डॉक्टर है या 24 आवर्स एमबीबीएस है. बाकी इन ऑल अदर वार्ड्स, इन ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, इफ यू डोंट हैव आईसीयू, जस्ट बैकअप फैसिलिटीज होगा आपके पास, या आपका खाली रिकवरी सेंटर होगा, पोस्ट लेबर के लिए आपने रिकवरी किया है, पोस्ट सीजरियन के बाद रिकवरी किया, आपने आईसीयू नहीं डाला है, आपने आईसीयू नहीं किया, तो फिर बाकी आरएमओज आर गोइंग टू सफाइस एज पर द नर्सिंग होम एक्ट एंड रूल्स. Okay. Yeah. Sir, my first question is from medical legal perspective. It is a mandatory to have in-house OT and ICU to perform a labor. देखो बालाजी, आई टेल यू, एंड ये डिबेटिंग क्वेश्चन हमेशा रहा हुआ है, लेकिन मैं आपको लॉ बताता हूँ. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कैटेगरिकली कहा है कि ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन Yeah. and
medical science is a complex science. Hence, medical accident, even in the form of death, doctor must not be held criminally if all due care has been given. बहुत ही ब्यूटीफुली कोटेड वर्ड है. मतलब आपको डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा सकता कि कोर्ट भी बोलता भगवान नहीं है. आपको कॉम्प्लिकेशन के लिए भी हेल्ड नहीं किया जाता, क्योंकि उनको भी मालूम है कि बेस्ट टू बेस्ट हैंड से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एडवोकेट भी केस हार सकता है, सीए भी गलती कर सकता है, तो ये उनको पता है. लेकिन उन्होंने आगे राइटर क्या डाला है, ड्यू केयर. ड्यू केयर का मतलब कि ऑल पॉसिबल केयर. आपका क्वेश्चन है कि मेरे पास हॉस्पिटल है, एनआईसीयू नहीं है, या मेरे पास ओटी नहीं है, या मेरे पास आईसीयू नहीं है, और मैं कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को कर रहा हूं. आप ड्यू केयर को किस तरह से दिखाओगे कोर्ट? Yes, यहां yes. तक कि मैं निग्लिजेंस की बात करूं तो निग्लिजेंस में भी कोर्ट ने क्या कहा है कि डेथ और कॉम्प्लिकेशन इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ निग्लिजेंस. तो मेडिकल निग्लिजेंस के डेथ को या कॉम्प्लिकेशन को निग्लिजेंस नहीं माना जाता. निग्लिजेंस क्या किया जाता है कि आपने पॉसिबल केयर दिया है कि नहीं, आपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो किया है कि नहीं, आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फोकस किया है कि नहीं. ये सब कोर्ट में चलता है. आप कोई भी जजमेंट पढ़ लो, तो इन चीजों को अगर आपको सेफ रहना है, आपको डबल श्योर रहना है कि मैं किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसूं, तो आपका यूनिट, आपका सेटअप अगर फुल प्लेज हो, तो आपका मेडिकल रिकॉर्ड चीख चीख के बोलता है यस आई हैव गॉट एवरीथिंग एंड आई हैव गिवन ऑल पॉसिबल केयर. मान लो आपके पास आईसीयू नहीं है, ऐसा पकड़ के चलता हूँ कि भाई मैं एमबीबीएस नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मेरे को आईसीयू चलाना है, तो यू हैव टू हैव अ टाई अप विद सम आईसीयू क्लोज टू यू, where you can demonstrate that in every emergency I am connected to this IO, I am shifting a patient to this IO, we have got some contractual relations and it is very close to me where I can immediately refer a patient. नहीं तो ऐसे लॉज भी हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नॉन आईसीयू होने की वजह से भी निग्लिजेंस प्रूव हुआ है. तो अगर आपको निग्लिजेंस के ब्रैकेट में नहीं आना है, लिटिगेशन लेस लाइफ रहनी है, हर केस को जीतना है, तो ड्यू केयर पे आप फोकस करो कि आप ऑल पॉसिबल केयर दो, जो आपके वक्त क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप पूरा केयर दो पेशेंट को. तो बच्चा अगर जरूरत है एनआईसीयू में डालना तो जाना चाहिए. आपको पता है कि ओटी में मेरे से कॉम्प्लिकेशन का आईसीयू चाहिए, तो आईसीयू होना चाहिए, ये आपका मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर आना चाहिए, तो यूर बी सेफ. सो जो आपने जो सेम पॉइंट, एविडेंस हुआ था understand. हाँ सर. हाँ सर सर, आई हैव सेम वो हुआ सर. प्रीवियस एविडेंस था. The gynecologist perform a preterm LACS twins. After LACS, babies are transferred to the next another hospital. Both babies are died. Then relative are complained a case against doctor, and then court give a penalty to the doctor. You perform a preterm LACS, then you have to in-house NIC. नहीं, कोर्ट ऐसा, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आएगा. मैंने आपको कहा कि ड्यू केयर के लिए कोर्ट तो ऑब्जर्व करेगा ना कि भाई मेरे पास बच्चा हो रहा है और इमीडिएट फैसिलिटी मेरे पास नहीं है. आप समझ रहे हो ना? क्योंकि बच्चा, मान लो उस वक्त कॉम्प्लिकेशन है, तुम्हारे पास टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड भी तो चाहिए ना कि मैं किसी और एनआईसी में शिफ्ट करूं, और कॉम्प्लिकेशन इधर ही है, और वो टाइम पीरियड इतना बड़ा है कि बच्चा वहां तक पहुंचने के पहले ही कमंड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, वॉट एवर हो जाएगा, तो यू नीड टू जस्टिफाई दैट. तो रिकवरी सेंटर तो होता है ना, मैं नहीं बोलता एनआईसीयू रखो, बट यू नीड टू हैव अ पीडियाट्रिक एंड फैसिलिटी फॉर प्राइमरी टेकिंग केयर ऑफ दीज बच्चूज, एंड देन यू आर शिफ्टेड एज वॉट एवर रिक्वायरमेंट के साथ में, अम्बू बैग के साथ में, भले आपके पास वेंटी नहीं है, तो देन दैट इज बीन आपका, अगर जो भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन डन बाय द एडवोकेट एंड मेडिकल रिकॉर्ड जो उनके सामने था. So don't go with one judgment, because judgment is depend upon multiple factors. कोई भी कोर्ट का जजमेंट आप देखिए, फैक्टर्स रहते हैं. मैं ऐसे कई जजमेंट भी दिखा सकता हूं आपको जहां प्रेजेंटेशन या मेडिकल रिकॉर्ड ने इतना अच्छा किया है कि कोर्ट ने फेवर में रिजल्ट दिया है. तो मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे सारे डेलीगेट्स को, आप जितना अच्छा डॉक्यूमेंट करोगे, क्योंकि कोर्ट के अंदर रिटर्न प्रिवेल्स ओवर ओरल. आप ओरल कितना भी बोलो मैंने ये किया, मैंने वो किया, कोर्ट बिलीव नहीं करता. आप जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करोगे, अगर यही केस में आपने बच्चे को रिफर करने के टाइम पे बहुत बच्चों डाइड,
अगर आपने दिखाया होता कि ऑल द प्राइमरी केयर वाज डन बाय द पेडियाट्रिशियन, एवरी रिसर्टेशन वाज डन एट अ प्राइमरी स्टेज, एंड फॉर फर्दर मैनेजमेंट इट वाज शिफ्टेड टू द मदर आईसीयू, एंड देन बच्चे कम, तो शायद रिजल्ट कुछ और आता। सर ये आई हैव द सब क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट। आपने जो बोला कि वी शुड बी एबल टू show that we have tie-ups with nearby NICU or ICU. So what kind of document we need? Any देखो पहले physical? कंप्लायंसेस की श्रीकांत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन कंप्लायंसेस अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं क्योंकि हम लोग एआई के वर्ल्ड में आ गए। और एआई के वर्ल्ड में कंप्लेनेंट जब जाता है तो आपके पास नोटिस भी एआई की आएगी, आपके अंदर कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट भी सब एआई से जनरेटेड रहेंगे, और एआई क्या क्या बताता है आप ट्राई करके देख लेना। मतलब आप Yes, जो सोच भी नहीं सकते बियॉन्ड एआई बताता yes. है। आप Beyond खाली that, अपनी yes, एक sir. केस प्रॉम्प्ट में डाल दो कि मेरे को बताओ इसके अंदर लेकुना क्या है, आप देखो जो आपके सोच के बाहर है वो भी बताएगी। तो जब हम लोग ऐसे Yes. वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो मेरे लिए एक ही चीज है मेरे लोगों को, कि हाउ बेटर यू आर डॉक्यूमेंटिंग द थिंग्स, हाउ Documenting. बेटर Yes, यू आर sir. लुकिंग टू द थिंग्स। तो ये चीजों को आपको केयर करना है, यू विल बी सेफ गार्ड। Yes. Sir, देर इज सेम पॉइंट जो मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था कि जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है while admission or everything or every procedure, that is consent. So sir, please throw some light on that topic कि See, consent I'll tell कैसा you, होना चाहिए, consent का क्या law होना is settled in our country. Remember that the law of consent is settled. Law of consent was generalized, been used earlier. लेकिन एक केस हुआ था कश्मीरा कोहली का, where the gynecologist has posted a patient for diagnostic lab call, and while doing the procedure he found that there is a definitely a major deformity is found under uterus. So चाहिए? patient was on OT table. He has called mother of the patient, taken consent from mother, उसको समझाया कि भाई अदरवाइज शी नीड अ हिस्टेक्टोमी टुडे और टुमारो, तो व्हाई यू आर गोइंग टू वेस्ट मनी एंड टाइम आल्सो, सो बेटर टू रिमूव एट वन गो। तो उन्होंने यूट्रस रिमूव कर दिया, एंड दैट लेडी वंस गॉट वेल, हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल, सेइंग दैट विदाउट माय कंसेंट आई वाज मेड इनफर्टाइल। यूट्रस निकल गया तो यू इनफर्टाइल हो गई, एंड दैट मैटर हैज गॉन टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि मदर का कंसेंट तो लिया था उसने, ओवरऑल कंसेंट भी Yes, था sir. कि वो ओटी में थी। तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि इस तरह का कंसेंट वैलिड है कि नहीं है। डॉक्टर को तो बचना था, डॉक्टर ने के भी कौंसिल लोगों ने काफी कुछ आर्ग्यू किया, अपोनेंट के कौंसिल ने भी आर्ग्यू किया। आर्ग्यूमेंट के दो तीन पॉइंट सिर्फ आपको बताता हूं, आप कंसेंट पूरा समझ जाओगे। एक कौंसिल, जब नया कंसेंट कॉन्सेप्ट आया हमारे कंट्री में, 2005 की बात कर रहा हूं मैं, तब ये फर्स्ट टाइम था। तो हमारे यहाँ जब कोई लॉ बनता है और हमारे पास कुछ कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो वी ऑलवेज रिफर इंटरनेशनल लॉ। हमारे जजेस देखते हैं कि व्हाट इंटरनेशनली बीन इंटरनेशनल, yes, अलाउड। सो उस टाइम पे कौंसिल ने क्या कहा कि यूके यूरोपियन कंट्री में रियल कंसेंट का फॉर्मेट है, एंड रियल कंसेंट इज फॉलोड। रियल कंसेंट का मतलब क्या हो गया कि यू हैव टू गिव रियलिटी टू द पेशेंट, एक्सप्लेन अ रियलिटी कि भाई मैं सिंपल ऑपरेशन करने जा रहा हूँ या सादा डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन दे रहा हूँ, डेथ हो सकती है। आई एम टॉकिंग दैट स्ट्रिक्ट रियलिटी। वो हमारे इंडिया में एक्सेप्टेबल तो नहीं होता था, क्योंकि भाई मैं अगर पेशेंट को बोलूंगा भाई ये करने जा रहा हूँ, डेथ हो सकती थी, प्रॉब्ली ही विल नॉट गो फॉर द ट्रीटमेंट। फिर दूसरा कंसेंट का उसी जजमेंट के अंदर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बातें हुई। दूसरे कौंसिल ने बोला कि यूएस एंड कनाडा में पीपल आर फॉलोइंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वेयर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द पेशेंट प्रायर टू द प्रोसीजर। तो कोर्ट ने उस, क्योंकि उसमें रेयरेस्ट टू रेयर बताने की जरूरत नहीं कि भाई तो डीआईसी में जा सकता है, ये तो आपको भी नहीं मालूम होगा, एम्बोलिज्म हो सकता है, ये आपको भी नहीं मालूम होगा। कहने का मतलब कि कोर्ट ने क्या बोला कि यू गिव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन वॉट एवर इज पॉसिबल फॉर यू। सो दैट ऑब्जर्वेशन डन बाई ऑनरेबल कोर्ट इन दैट जजमेंट। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई व्हेन यू आर टेकिंग अ पेशेंट for giving a complete information, minimum requirement is that you need to explain complete detail about the procedure to the patient and benefit he is going to get out of that particular procedure. You have to you have to explain possible complication of that particular procedure. फिर कोर्ट ने एक स्टेप आगे गए, बोले नहीं आप इंफॉर्मेशन में इतना नहीं, आप उसके बाद आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो बताओ। भाई मैं अगर एलएससीएस को बोल रहा हूं मेरे को करना होगा,
और मेरे पास अल्टरनेटिव है कि भाई वैक्यूम भी हो सकता है, फोर्सेप भी हो सकता है, तो मेरे को उसको बताना है। अगर और कॉम्प्लिकेशन बताना है। अगर पेशेंट ने उसको ऑप्ट किया, देन यू नीड टू टेक अ रिफ्यूजल कंसर्न, क्योंकि आपकी एडवाइस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ प्राइम एडवाइस। डॉक्टर ने एलएससीएस बोला, दैट इज गोइंग टू बी प्राइम। अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रही है और आपने साइन दिया है, तो इट इज अ निग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ अ पेशेंट। तो वो चीजें आपको, चारों चीजें को फॉलो करना है। हर प्रोसीजर का कॉम्प्लिकेशन अलग होता है, तो एवरी प्रोसीजर नीड टू हैव अ कंसेंट। सो कंसेंट के फॉर्मेट में ये चीजें जरूरी है। सेकंड, हमेशा याद रखिए कंसेंट में 3 सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव पेशेंट सिग्नेचर, एडल्ट कॉन्शियस ओरिएंटेड कैन गिव सिग्नेचर, हस्बैंड नहीं चलेगा व्हेन वाइफ इज देयर, पेशेंट मीन्स पेशेंट, फॉर माइनर अनसाउंड माइंड गार्जियन सिग्नेचर, फॉर naturally third signature is a witness, second signature is of yours. So 3 signature, first patient signature, second doctor signature, because डॉक्टर ही एक्सप्लेन करेगा सर, नर्स तो नहीं करेगी, तो नर्स का सिग्नेचर नहीं चाहिए, आप नहीं हो, आपकी टीम का कोई होगा। थर्ड इज विटनेस सिग्नेचर, विटनेस आपका अपना हो, क्योंकि आप हस्बैंड की साइन लोगे तो कोर्ट में वो हस्बैंड जाके बोलेगा ये तो हमसे ब्लाइंडली साइन लिया था, हम तो वहां थे, वो एफिडेविट देगा। आपका बंदा बोलेगा नहीं, डॉक्टर ने समझाया था। So I was witnessing there. I have seen that doctors explained every possible thing, and then she has signed. This 3 signature is mandatory. Translator signature plays a vital role. If at all that lady does not understand English or language you don't understand from the territory she came, or whoever signs on vernacular language, if signing on Marathi means she does not understand English. If signing in Hindi, they don't understand Marathi and English. So you need to have a signature of translator and one liner at least इनके उस भाषा में कि I have been explained everything in my language. That translator will help you to say that yes, I was there, I was translating it for the patient. So these are the basic requirement of consent which you need to mandatory follow. आपके लिए अच्छा है अगर आपने कंसेंट फॉलो किया, आप गायनेकोलॉजिस्ट हो। मैं आपको और एक स्टेप बता के जाता हूं कि पॉक्सो लॉ के अंदर भी कंसेंट की बात आई है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड के अंदर उन्होंने बोला है कि सेक्सुअल ऑफेंस में टचिंग अ प्राइवेट पार्ट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड मीन बिलो 18 ईयर। अब कई बार सर्कमसीजन के लिए मेरे डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं, कई बार फीमेल बर्निंग मिक्चुरेशन या अदर प्रॉब्लम के लिए फीमेल पेशेंट का भी एग्जाम, भले वो 1 साल की हो भले 8 साल की हो। तो लॉ क्या बोलता है कि फॉर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट डन बाय मेडिकल डॉक्टर, they are immune under the law, क्योंकि आप टच कर रहे हो प्राइवेट पार्ट, सो यू डोंट कम अंडर सेक्सुअल ऑफेंस। लेकिन उन्होंने राइडर डाल दिया, इफ सेम हैज बीन डन विद द कंसेंट ऑफ अ गार्जियन, तो कंसेंट वहां भी आ गया। मतलब कभी आप चाइल्ड को प्राइवेट एग्जामिनेशन कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट का, विच एवर एज अप टू 18 ईयर्स, एक सिंपल कंसेंट फॉर्म पे साइन लो कि यार वी आर अलाउइंग टू एग्जामिन। आज की तारीख में ओरल कंसेंट रहता है, लेकिन कोई आपसे दुश्मनी निकालना चाहा तो आपको तकलीफ दे सकता है। इतना बेकार लॉ है वो, मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मेरे पास केसेस आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। वहां एक कंसेंट आया हुआ है विच यू नीड टू। तो और जहां इनफर्टिलिटी की बात आती है, प्रेफर करो कि हस्बैंड वाइफ दोनों का कंसेंट रहे तो ज्यादा अच्छा है। दैट इज गोइंग टू बी अनदर बेनिफिट टू यू। सो कंसेंट लॉ अपने कंट्री में सेटल्ड है, यू हैव टू जस्ट फॉलो वॉट एवर बीन गिवन। प्री प्रिंटेड कंसेंट फॉर्म का डेफिनेटली वॉज बिग इशू, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग आज भी, आप भी अपने हॉस्पिटल में जाओगे और 2 महीने पहले का 4 पेपर निकाल के देखोगे तो कंसेंट पेपर के अंदर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ ब्लैंक, क्योंकि पेशेंट तो अच्छा होके चले गया, डॉक्टर का नाम नहीं होगा, प्रोसीजर का नाम नहीं होगा, एनेस्थेटिक का नाम नहीं होगा, एंड ऐसा पेपर कोर्ट के पास जेरोक्स होके पहुंच जाता है। तो आरजी स्टोन के केस में 2020 में कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट प्री प्रिंटेड कंसेंट फॉर्म is high headedness of the hospital, is arbitrariness of the hospital, is unfair trade practice। 10 लाख की पेनल्टी किया, अभी वो उसको स्टे हो गया है सुप्रीम कोर्ट पे। बट यू हैव टू वेरी केयरफुल
कि जो पेपर बनाते हो वही उसको कंप्लीट करो। 1 साल बाद आपको याद नहीं होगा कि आपने पेपर इनकम्प्लीट रखा है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सर सेम एक मैंने देखा है ट्रेंड कि जब कंसेंट लेते हैं या पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोसीजर, पीपल आर टेकिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग, सो इज इट परमिसिबल इन कोर्ट? डज इट हैव यस, एनी? yes, Srikanth. After this new law came, that is Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, electronic document has got a new domain where electronic documents have been treated as evidence. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पेशेंट को काउंसलिंग तो करते हो ओपीडी में भी, जब भी सिजेरियन भी करना है तो पहले आप काउंसलिंग करते हो, तो काउंसलिंग कंसेंट भी लो, बिकॉज यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, यहाँ तक कि आप डायग्राम भी ड्रॉ करके देते हो। कोई प्रोसीजर करते हो, यू ड्रॉ द डायग्राम, यू एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड रिलेटिव, ये सब चीजें करते तो हो, लेकिन रिकॉर्ड नहीं रखते। दीज आर द पीस ऑफ पेपर विच इज गोइंग टू सेव यू लॉट। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सब भी आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करो, नहीं तो सीसीटीवी रखो, ऑडियो रिकॉर्डिंग उसमें रखो, बाहर बोर्ड लगा दो सीसीटीवी सर्वेलेंस, एटलीस्ट वो रिकॉर्ड तो हो रहा है। तो काउंसलिंग कंसेंट भी है, आपका एक्सप्रेस कंसेंट भी है, तो डेफिनेटली इट इज यूजफुल टू यू। ओके सर कोई पेशेंट रिफ्यूज करता है कंसेंट के लिए, जैसे सिजेरियन का कंसेंट हो, इपेक्टोमी का कंसेंट हो या वैक्यूम का कंसेंट हो, तो कंसेंट फॉर्म का एग्जैक्ट उसमें क्या लिखना चाहिए प्रॉपर? देखो, मेरे पास केसेस आए हैं, मेरे डॉक्टर फंसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास एक ऐसे कई केसेस है, बट आई जस्ट गिव वन एग्जांपल टू यू। द प्रीच प्रेजेंटेड लेडी अप्रोच दिस गायनेकोलॉजिस्ट, और फुल टर्म थी। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया भी एलएससीएस मैंडेटरी है, मुस्लिम पेशेंट थे, एंड उनके दिमाग में था कि डॉक्टर तो पैसा कमाने के लिए सिजेरियन करता है, वो नॉर्मल डिलीवरी, और डॉक्टर को मालूम है ब्रीथ प्रेजेंटेशन है, मैं नॉर्मल कर ही नहीं सकती हूँ। अब वो मेडिकल इलिटरेट पेशेंट को नहीं समझता, आप कितना भी समझाओ तो उसको लगता है डॉक्टर बहाने बना रहा है, ही वांटेड टू मेक अ मनी, दैट द रीजन ही वांटेड टू गो सिजेरियन। उस केस में ऐसे ही हुआ, फीटल अल्ट्रासाउंड ड्रॉप होते गया, मैडम चिल्लाती रही, शी वाज हेल्पलेस, और फाइनली वो सिग्नेचर तो नहीं दिए, उनको बोला आप लेके जाओ पेशेंट, हमको मेरे को नहीं करना है, बिकॉज आई नो इट इज गोइंग टू बी रिस्कियर, विदाउट कंसर्न तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन वो मुस्लिम पेशेंट ने यहाँ तक बोल दिया, मर गई तो चलेगा मैडम, मैं हम देख लेंगे आपको, हम साइन भी नहीं देंगे, हम जा रहे हैं, पेशेंट आपके छोड़ के जा रहे हैं। अब ऐसा सिनारियो सिचुएशन में आप क्या करो भाई? ले भी नहीं जा रहे, कंसेंट भी नहीं दे रहे। ऑलवेज रिमेंबर इन सच अ सिनारियो, कॉल ऑन 100 और इन्फॉर्म पुलिस इमीडिएटली, so that they will come, take their consent, because this is the reality. They are going to be the consent holder. Your colleagues also can give a consent, bystander also give a consent after getting this, और जैसे मैंने आपने बोला ऑडियो वीडियो, which is going to help you out. But authorities are definitely going to be क्योंकि अथॉरिटी क्या करेगी, वो तो फैमिली मेंबर को बुलाएगी या बोलेंगे देखो मर रही है आप साइन करो, नहीं तो इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो पुलिस अथॉरिटी का ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो नहीं फंसना चाहते। सो यू विल बी सेफ गार्डेड विद दैट पॉइंट। Yes. Yes. Next. sir, one important document partograph is there to monitor and to take a decision of progress of delivery, so how much important it is to maintain that See, I'll tell you, partograph? everything, whatever you say comes under standard protocol of treatment. You need to do. Now, many of the Yeah. time we are in a very micro interior where many of the instruments are not available because of cost factor, because of many other things and all. So, in absence of any instrument, because of some reason, does not bring litigation against the doctor. भाई आपको प्रोग्रेस करने के लिए मेरे पास मशीन ही नहीं है। आप याद रखिए, मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, मैं जब आर्ग्यू करता हूँ कोर्ट में, so when sonography machine was not there, or when the advanced technologies were not there, we used to diagnose everything clinically. And today also 80 to 90% your diagnosis is based on clinical experience of yours and clinical presentation of the Yes. patient. 10 to 20% you do investigation to reconfirm your diagnosis. भाई कुछ भी Yes, तुम sir. के समझ जाते हो कि भाई लीवर पाल्पेबल है, मेरे को ये लग रहा है, या फिर आपने Yes. एफएचएस देख लिया, आपने ऑसिलेट कर दिया, आपने देख लिया, आपको समझ में आ जाता। अपने डायग्नोसिस को रिकन्फर्म करने के लिए आईयूडी हो गया, आप समझ जाते हो, बट रिकन्फर्म करने के लिए आप क्या करते हो, यू गो फॉर सोनोग्राफी। सो एनी मशीनरीज डिपेंडेंसी is for the purpose of betterment of a doctor for more care and more the things. Absence of that does not mean that you are going to be held responsible for negligence, because your clinical
experience are going to count in a court of law rather than dependency on machinery. बहुत बार क्या होता है, मशीन बंद पड़ जाती है प्रोसेस के टाइम प्रोसेस करते, कोर्ट ने यहां तक बोला है कि इवन इन सच ए सिनेरियो वेयर machine gets shut down because of some reason, technicality, and doctors is doing his job professionally in a proper manner, we should not hold responsible doctor for the lack of something which is beyond their control. तो मशीनरीज का प्रोग्रेस पे डेफिनेटली एड ऑन सपोर्ट तो है ड्यू केयर के लिए, लेकिन नहीं होने से यू आर नॉट गोइंग टू बी हेल्ड वाइडली रिस्पॉन्सिबल इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस. Okay. Sir, my question is, after diagnosing fetal distress and taking consent, what is a legally acceptable time to deliver the baby? There is no legal acceptable time. What court said that as fast as possible with your experience, academic experience. The law total का total एक ही focus पे रहता है कि what you learn in academic, what is taught under the books, that is only evidence. जो आपने बुक्स पढ़ा है उसके अंदर जो लिखा है फीटल डिस्ट्रेस का उन्होंने पूरा डिमॉन्स्ट्रेट किया जो आपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ा है, और उसमें आपको एस्टिमेटेड टाइम के बारे में सब कुछ बताया फीटल डिस्ट्रेस का. सो कोर्ट इज गोइंग टू बी बिलीविंग, बिकॉज कोर्ट तो डॉक्टर नहीं है, कोर्ट एक्सपर्ट नहीं है, या तो किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेगा या बुक्स एंड रेफरेंसेस और आर्टिकल्स को बिलीव करेगा, ऑथेंटिकेट बुक को बिलीव करेगा. दैट इज द बेस ऑफ योर एकेडमिक स्टडी, क्योंकि सारे के सारे बुक्स आपने एकेडमिक स्टडी में पढ़ा है. सो देयर दैट इज गोइंग टू बी ग्राउंड फॉर डिसाइडिंग टाइम. बट मोर देन दैट it is your vast experience of handling such a cases, being a gynecologist, being a doctor, you have to take a call ki what could be the stipulated time to save the life of the बच्चू or a mother. वहां अगर आपको मालूम हो कि भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, बच्चू डाइज और मदर डाइज, देन यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट कि मैं इतना घंटा क्यों लेट हुआ. Okay. Yes, yes. So, sir, इसके आगे का एक ये है कि the most horrific thing happens is a stillbirth. So, how to defend that thing? Because मैंने एक केस ऐसा देखा है कि the sonography center was just next building. Patient came with heartbeat, and when she admitted within 5 minutes, heartbeat were gone. So, in such cases, how to handle it? How to defend it? And what kind of Stillbirth is, preventive- see, if you heard me properly, I have shared Supreme Court judgment where Honorable Supreme Court says that ki with the best to best hand also possibilities of outcome or wrong outcome or failure do happen, but that is not a negligence. So stillbirth hona, in spite of giving all care, you can defend yourself because stillbirth का तो तुम रीजन नहीं हो ना. या तो Yes. पेशेंट आईयूडी में होगा, आपको पता नहीं चला होगा और स्टिलबर्थ हुआ होगा, या ड्यूरिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं कोई ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा which you have already taken care of that, और stillbirth हुआ होगा. Only thing focus that you do every act of your own based on your academic qualification, following standard of treatment, फिर आउटकम कुछ भी हो ना, you can easily defend. अब वहीं अगर आपका लेकुना होगा, वहीं आपकी मिस्टेक होगी, और वो अगर आप नेचुरली डॉक्यूमेंट कुछ भी करो, कल को क्रॉस एग्जामिनेशन में, क्रॉस इन्वेस्टिगेशन में नर्सेज और कुछ बोलती है, ओटी बॉय कुछ और बोलता है, एनेस्थेटिक अपने आप को बचाने के लिए कुछ बोलता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल दिस थिंग्स. जानबूझ के नहीं की गई गलती आपको लायबल नहीं बनाती. इंटेंशन प्लेज अ वाइटल रोल. तो आप स्टिल बर्थ के लिए डरो मत. Yes, do inform, do record, do explain to the patient about this. If patient is not happy and they have got doubt, send it for the postmortem to ascertain कि बच्चू पेट में मरा था कि बाहर के मरा था. PM will, Yes. the moment he has taken an oxygen inside, PM वाला तुरंत बोल देगा नहीं ये डेथ पोस्ट डिलीवरी हुई या प्री डिलीवरी. अंदर हुई है तो आप तो बिल्कुल जवाबदार नहीं है, बाहर हुई तो आपने केयर किया, वो अगर दिख रहा है तो you'll be safeguarded. Okay, sir. My question is, in a massive PPH, what documentation should be maintained regarding escalation, blood arrangement, and counseling? देखो, always remember Balaji, and to all my delegates here, rather in every delivery we expect that blood loss is going to happen. May not happen, but we can presume that there's a, so always keep a habit of reserving a blood. If you have reserved the blood, one, I know because of want of payment or because of lots of things, patient may deny, but you need to follow this as a standard protocol, because if you have done that, you are much care about the patient, because PPH is not in your hand.
but suddenly PPH happen and you don't get a blood. Imagine what will happen, because then it will take a time to arrange the blood. You are going to send for the cross matching, he is going to run for the blood bank, and the blood bank had to search a blood, and you lose a lot of crucial time to save the patients. And that need to be justified to the court. So if you reserve the blood, at least you can say that yes, immediately is what, because PPH is not in it. So in documentation, these are the things very, very important role play, where what you have done in PPH, how you have handled that scenario. If blood was not there, what you have done. Alternatively, what you immediately done. What effort you have taken. Question will definitely arise when you are doing delivery, you are expecting such a complication, why you are not reserve the blood. Then it will become very difficult. So your documentation starts from that part to this part. And if you are able to justify or demonstrate, then for the complication, you are not responsible. See, PPH is not, I have got hundreds of cases of PPH in 23 years of my life, and hundreds of deaths in such a scenario. I can give a lots of example to you, and nothing happened to my doctor, because court accept that it is beyond doctor's hand. Very, very natural process. It is not man-made, not intentionally done. Ask yourself, PPH is in your hand? No. Then even court says that, even book says that, even the academic. So why to worry? You have to focus on possible care. And if you are focusing on possible, which is demonstrated in document, rest assured nothing is going to happen. Yes. Sir, 100%. same. I have one query in this PPH topic. Whose responsibility, whose primary responsibility it is to book the blood, whether the treating doctor or the relatives who are more means in Doctor. court Patients of are not a okay, doctor. Always remember. okay, Patient by means their own, they cannot take a treatment and go and take a treatment. Who is going to advise okay, him? Doctor. doctor. So responsibility is 100% on doctor. So Patient को means बोलेगा if उसको पता ही नहीं तो मैं जाके बुक कर लेता था. book करके लेता था. Means if blood is not available in surrounding thing, you are responsible that you are treating the patient without the blood in court नहीं of नहीं, law. नॉट अवेलेबल का छोड़ दो, वो तो आपको तो एक ध्यान रखना ही है. नॉट अवेलेबल में यू कैन बी सेफ गार्डेड. आई आर्ग्यूड अ मैटर इन कोर्ट ऑफ लॉ वेयर ड्यूरिंग एमटीपी कॉम्प्लिकेशन हैपेंड एंड ड्यू टू ब्लड लॉस पेशेंट डाइड, एंड वो पेशेंट को ब्लड लाने के लिए भेजा, एंड दैट वाज ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर अवे ब्लड बैंक, एंड बाय द टाइम no blood could be arranged and patient could be given, and that lady was booked under 304A, and I could able to submit a honorable Supreme Court judgment where this honorable Supreme Court has said facility available at particular place at particular time need to be considered to fasten criminal liability. अब मेरे यहाँ मैं इतने माइक्रो इंटीरियर में हूँ या इतने इंटीरियर में जहाँ ब्लड बैंक ही नहीं है, तो मैं पेशेंट को मरने के लिए अदरवाइज भी नहीं छोड़ सकता ना. तो मेरे को दो में से ए रिस्क तो लेना ही है. कोर्ट क्या बोलता है, फॉर ग्रेटर रिस्क इफ यू आर टेकिंग फॉर सेविंग अ लाइफ यू आर टेकिंग अ ग्रेटर रिस्क ऑल्सो, देन ऑल्सो यू आर क्रिमिनली सेफ. भाई तुम छोड़ दोगे तो वैसे ही मर जाएगी. ब्लड ही नहीं है मेरे पास, 70 किलोमीटर में डिलीवरी नहीं करता, लेबर पेन में पेशेंट आ रही है और आप बोल रहे हो कि नहीं 70 किलोमीटर दूर जाए सर्जरी करने को, तो वो भी तो डेथ ही होगी ना. तो कोर्ट क्या बोलता है कि यू हैव टू प्रिकॉशन, यू हैव टू टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशन. मैं नहीं बोलता पेशेंट को अबेंडन करो, बट यू नीड टू हैव फैसिलिटीज अवेलेबल एंड फैसिलिटीज के हिसाब से गो विद दैट. ओके, सो सर हम यानी ये अभी थोड़ा एडिशनल पॉइंट हो जाएगा. व्हाट वी आर डूइंग सिंस मेनी इयर्स, जो स्पेशली जो RH नेगेटिव पेशेंट्स है, वी आर बुकिंग एटलीस्ट 1 or 2 बैग ऑफ ब्लड 1 month prior the expected EDD. So at least तो we आपकी get an चॉइस, idea. Means दैट इज गुड this is what आइडिया. we are doing. नहीं, बट That is यू what हैव we are टू doing. रिजर्व अ ब्लड इन एवरी सिंगल पेशेंट. आज का एरिना में बता रहा हूँ, आपको ही नहीं पता क्या Yes, होने वाला है. आप मेरे को क्या बताओ होने 100 में वाला से है. कितने केस ऐसे होते हैं कि जब आपको लगता है कि ब्लड चाहिए था, ब्लड चाहिए था. अपने आप से हाँ, पूछते हो ना, आई एम नॉट देयर, यू आर देयर टू डू डे इन डे आउट प्रैक्टिस. yes बेस्ट sir. प्रैक्टिस ये है कि कभी एनीमिया होने ही नहीं दो अपने पेशेंट को. जो रजिस्टर्ड पेशेंट है उसका एनीमिया आना ही चाहिए. बेस्ट प्रैक्टिस. Correct. So, sir, next important topic is referral. Means when we what is the best timing of referral, and what are the documents we need to have when we refer a patient, and most important thing is that डॉक्टर हर बार पेशेंट के साथ जाना चाहिए क्या एम्बुलेंस में जब आप पेशेंट रेफर कर रहे हो तो. देखो मैं आपको बोलूँ, व्हाट इज द बेस्ट टाइम इज योर कॉल.
Choice. Okay. आपको आप डे एंड डे ऑफ प्रैक्टिस करते हो, योर सिक्स सेंसेस, यू नो दैट व्हाट कुड बी कॉन्सिक्वेंस, हाउ मच टाइम यू नीड टू नो सेट द पेशेंट, क्योंकि आपकी ये कोशिश रहेगी भाई किसी तरह ये टर्सरी केयर सेंटर पे पहुंच जाए। तो बेस्ट टाइम डिसाइड करने वाले आप हो। तो यू आर नॉट गोइंग टू प्ले विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट टिल द लास्ट मोमेंट वेयर यू नो पेशेंट इज गोइंग टू डाई ऑन द नो इन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। सो During बेस्ट टाइम traveling. यू नीड टू टेक अ कॉल। लेकिन इतना तो फोर्स ही कर सकते हो बिकॉज दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ योर्स, देयर आई एम नॉट देयर टू कॉल, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। Secondly, referring note should be precise enough to speak so that other doctor can immediately take a call to initiate the treatment. मतलब इतना तो precise रहना चाहिए कि what patient has presented and then what was done with the patient and what thereafter possible complication and how patient and what deterioration, whatever you're trained and why you are sending. So उस patient सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि भाई द मोमेंट एक लुक देखता है या आपने उसको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया रेफरिंग नोट, वो प्रिपेयर्ड हो जाता है कि भाई ये ऑनसेट से आ रहा है तो मेरे को ये करना है। थर्ड, Yes. accompanying a patient, yes, either you call an ambulance with a doctor or you accompany. Without doctor, if at all patient goes, then you are definitely responsible. हमारा लॉ बोलता है till the time you hand over your patient to other qualified doctor, your responsibility remains with you. तो आप एम्बुलेंस पे डालते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। एम्बुलेंस पे अगर डॉक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं तो यू हैव टू टेक अ कॉल टू रिमेन विद द पेशेंट टिल द टाइम यू हैंड ओवर टू सम क्वालिफाइड डॉक्टर। सर सेम इसके बारे में एक सिनेरियो मैंने सुना है और हुआ है कि पेशेंट वाज सीवियर पीआईएच, तो शी वाज रेफर्ड टू एन आईसीयू सेंटर, बट पेशेंट वाज गिवन एन ऑप्शन कि आपको एम्बुलेंस में जाना है या आपका खुद का कार है। सो दे सेड कि हम हमारे कार में लेके जाते हैं बिकॉज द आईसीयू इज नियरर। सो दे टेक द पेशेंट विद देयर ओन कार। वहां पे जाने के बाद डिलीवरी हुआ, पीपीएच हुआ, पेशेंट डाइड, डीआईसी में गया, और केस जब रेज्ड हुआ तो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि क्यों पेशेंट को कार में शिफ्ट किया गया, व्हाई नॉट डॉक्टर गो हिमसेल्फ इन एम्बुलेंस विद द डॉक्टर। सो उस दो डॉक्टर के ऊपर भी एलिगेशन हुआ था। होना ही है ना, क्योंकि आइदर यू कॉल एम्बुलेंस और यू अकम्पनी अ पेशेंट। अगर Yes. इमरजेंसी है, एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल है, यू कैन जस्टिफाई, देन ऑल्सो विद ऑल फैसिलिटी यू कैन गो इन अदर व्हीकल बट डॉक्टर शुड बी देयर। Yes. 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 So, sir, next question is how to code the differentiate between unavoidable obstetric complication and actual negligence. कैन यू रिपीट बालाजी? How to code differentiate between unavoidable obstetric complication and actual negligence. देखो, अनअवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन और निग्लिजेंस को अगर दोनों को आप एक नजरिए में देखो तो अगर आपने मेरे को प्रॉपरली सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि ओमिशन ऑफ समथिंग और कमीशन ऑफ समथिंग विच अदर प्रूडेंट डॉक्टर विल नॉट डू इज अ डेफिनेशन ऑफ निग्लिजेंस। कि भाई मेरे को ये चीज, मैं अगर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो ये चीज मैं करने वाला हूँ लेकिन इसने नहीं किया, या फिर ये चीज नहीं करना चाहिए जो मैंने किया, इज गोइंग, आई विल गिव एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। There was a case of tertiary care center came to me where RTA patient went in MOF and was on a deathbed. The doctor thought, why not give best shot of antibiotics so that I can save the patient? Intention was very clear. तो उसने vancomycin 2 ग्राम 3 times a day prescribe किया for 7 days. पेशेंट का डेथ बीमारी से हुआ। कोर्ट के अंदर 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन फाइल किया। कोर्ट में उसने प्रेजेंट किया कि एफडीए का क्लियर कट गाइडलाइंस है कि मैक्सिमम डोज ऑफ वेनकोमाइसिन इज 2 ग्राम अ डे and 6 gram a day is pushed in the body of my patient, and overdose of vancomycin causes nephrotoxicity and neurotoxicity. तो दूसरा प्रूडेंट डॉक्टर डेफिनेटली ये नहीं करता था। या फिर जहां आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है और आपने नहीं किया और फिर लिटिगेशन आ रहा है तो डेफिनेटली क्वेश्चन कोड बोलेगा ना कि भाई दूसरा डॉक्टर तो इन्वेस्टिगेशन करता था। सो डिफिकल्ट ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर आपने किया भी और ऑल पॉसिबल केयर लिया तो आपका कोई रिश्ता निग्लिजेंस से नहीं है। आपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो किया, पेशेंट का डेथ भी हो जाए, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन भी हो जाए, आपने प्रॉपर काउंसलिंग किया है, कंसेंट लिया है, आपने जो भी लर्न किया था एकेडमिक में फॉलो किया है, फिर भी आउटकम फेलियर में गया है तो यू विल नॉट बी हेल्ड फॉर निग्लिजेंस। सो नॉट टू वरी दैट।
मैंने पहला ही लाइन बोला था कि वी आर इन अ कंट्री ऑफ सोसाइटल लॉ, सोसाइटीज बेटरमेंट इज प्राइम इन आवर कंट्री। तो आप किसी की लाइफ के लिए कर रहे हैं तो आप जाके कोई भी लॉ पढ़ लो। अगर किसी की जान बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको ऑफेंस नहीं माना गया है। Yes, important is to perform standard protocols. आवाज नहीं आ रही, प्लीज। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हेलो। फॉलो करना यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना ही इम्पोर्टेंट है. बस बस बस, दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट. यस. सर, इसमें एक मुझे ये पूछना था कि negligent doctor, this is negligence is a one thing, but how to defend ourselves as a BMS postgraduate that we are not quack, means these are the two different things कि आप negligent हो, negligence हुआ is a different thing, और आप quack हो, you were not allowed to do that. यानी जैसे अगर मैं BMS MS गायने को मैंने अपेंडिक्स कर दिया, पेशेंट मर गया, तो I was not authorized to do that thing. ऐसा इसमें क्या, हाउ वी कैन डिफेंड, बिकॉज जब मैटरनल मॉर्टेलिटी के लिए जाते हैं अपने लोग, तो वहां पे सीधा पूछते कि आप तो गायनेक नहीं हो, तो ये पेशेंट किस गायनेक ने हैंडल किया था. सो हाउ टू डिफेंड आवरसेल्फ इन दैट सिनेरियो. दो चीज याद रखना, एक तो वी शुड नॉट क्रॉस ओवर आवर स्पेशलिटी। लॉ सेटल्ड है हमारे यहाँ क्रॉस स्पेशलिटी का, तो क्रॉस स्पेशलिटी प्रैक्टिस डेफिनेटली एक्शनेबल है। सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है, धनाका का जजमेंट पढ़ना, 1 करोड़ कंपनसेशन दिया था, बहुत सेटल्ड लॉ है। सेकंड क्वेश्चन है कि आप पीएमएस डॉक्टर, एमएस डॉक्टर या किसने गायनेकोलॉजिस्ट किया, तो सबसे पहले यू नीड टू कन्विंस योरसेल्फ दैट यू आर अलाउड और नॉट। 90% टाइम मेरा देखा है कि हमारे अंदर ही कमतरता है, हमको सब कुछ पता है, हमारा लॉ हमको अलाउ करता है, लेकिन हम अपने आप ही डरते हैं और उसका अवेयरनेस भी नहीं करते। हम छुप छुप के प्रैक्टिस करेंगे, हम डर डर के प्रैक्टिस करेंगे, हम दूसरे को बुला के प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रिकॉशन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम खुल के नहीं करते, क्योंकि आप अपने आप से ही कन्विंस नहीं हो। मैं आपको यस. सिर्फ लॉ बता देता हूँ, आपको बहुत क्लियरली कभी भी कोई पूछता है तो वो एडवोकेट नहीं, वो जज नहीं है जो पूछने वाला है, वो भी एक ह्यूमन यस. बीइंग है। उसको भी नॉलेज नहीं रहता, उसको नॉलेज नहीं देना है. यस. पड़ता है। जजेस को भी बहुत बार प्रेजेंट करना पड़ता है। दुनिया में हर आदमी को परफेक्ट नहीं पकड़ सकते। आपके यस. पास आपका लॉ है, एमएमपी एक्ट आप लोगों ने अमेंड किया है 2014 में, आपके एफर्ट से वो स्टे तो नहीं हुआ है। 2014 में जब एमएमपी एक्ट को महाराष्ट्र में अमेंड करके सेक्शन 25 के अंदर 4 और 5 लाया गया, तो उसके अंदर ही लिखा है यू आर अलाउड टू यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पीजी स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट इनोवेशन। उसका मीनिंग क्या है? आपने कई आरटीआई फाइल किया, आप खुद मेरे को आरटीआई दिखाते हो, सर मेरे को ये अलाउड है, सर मेरे को अलाउड है। आपका खुद का काउंसिल आपको लिख के देता है कई जगह पे कि आपको ये अलाउड है। जब सब चीजें आपके पास रेडी है, तो भी अगर आपके मन में फियर है, तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको बिंदास होना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन पूछे, यू नीड टू डिबेट दैट, एंड यू नीड टू डिबेट विद ऑथेंटिकेशन, विद द लॉ। बिकॉज आपको एक चीज मैं बता दूं फॉर योर नॉलेज, इवन हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू इंटरप्रेट द लॉ। ऑलवेज रिमेंबर, एक्ट इज सुपीरियर, एक्ट इज सुपीरियर। एक्ट इज मेड बाय पार्लियामेंट और असेंबली, आप समझ रहे हो ना? तो एक्ट इज यस. सुपीरियर। सुप्रीम कोर्ट खाली देखता है ये एक्ट बनते टाइम कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं हुआ है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है तो एक्ट सुपीरियर। मैं एग्जांपल देता हूं, राजीव गांधी के टाइम पे आप लोग को सबको पता होगा कि बहुत बड़ा केस था, मेरे को याद है, खान, मिस्टर खान का केस था। उसके अंदर कंपनसेशन मुस्लिम फीमेल को दिया था अंडर 125 सीआरपीसी, और फर्स्ट टाइम सीआरपीसी को इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, बोला था नहीं, मुस्लिम फीमेल आल्सो कम्स अंडर द लॉ एंड शी नीड टू बी गिवन अ मेंटेनेंस, और वो बोल रहा था पर्सनल लॉ में नहीं दे सकते। एंड द सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, किसको इंटरप्रेट किया? सीआरपीसी को इंटरप्रेट किया, एक्ट को इंटरप्रेट किया। एक्ट के ऊपर नहीं गई हो, लेकिन इमीडिएटली जब यूएन क्राइम हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बवाल हुआ, तो राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर एक्ट को अमेंड किया। अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट किया. जब यस. एक्ट को अमेंड कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट चुप बैठ गया, बिकॉज एक्ट इज मेड बाय पार्लियामेंट, लॉ पार्लियामेंट. इज यस. मेड बाय असेंबली। एवरी कोर्ट यस. आर देयर टू इंटरप्रेट दैट एक्ट, नॉट अनलेस इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपका 2014 से लेकर 2026 12 साल हो गए एक्ट बन के, मेरे को बताओ आप क्या बचा है? अनलेस इट इज रिपील्ड, आपको कौन रोक रहा है? आई डोंट नो वेयर एंड व्हाट इज स्टॉपिंग यू। जब आपका काउंसिल आपको बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, who regulate the practice? Your medical council.
Who regulates Rare allopathic consonants. practice? NMC. Who regulates integrated practice? In Maharashtra, MCIM, or in center, NCIM. Who regulates homeopathic practice? NCH. Who regulates DCI? NDCI, dental practice. So अगर NDCI ने बोल दिया कि मैक्सोफेशियल सर्जन कॉस्मेटिक प्रैक्टिस कर सकता है, तो मैक्सोफेशियल कॉस्मेटिक कर रहा है, वो 50 बार कोर्ट में जा चुके हैं, सब कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, वो कोर्ट क्या बोलता है, भाई ये एक्ट है, मैं क्या करूं? आर यू गेटिंग मी? सो Yes, यू sir. हैव टू आस्क योरसेल्फ, जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्यों उतना, या फिर आप डर के क्यों प्रैक्टिस करते हैं? आस्क योरसेल्फ. मैं तो इधर आंसर देने के लिए, मैं तो सिर्फ लॉ को सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए बैठा हूं. मैं लॉ के बाहर बात नहीं करूंगा. मैं आपको Yes, लॉ sir. जो आपने बनाया है सिर्फ आपको दिखा रहा हूं. आप वो आपकी मर्जी है, आप डर के प्रैक्टिस करो, मेटरनल मोटर मेटेरियल में जाके आप क्या आंसर दो क्या नहीं दो, इट इज योर कॉल. एंड ओनली थिंग आई विल टेल यू नीड टू मेक अवेयरनेस. क्योंकि Yeah. अब मैं आपको बताता हूँ, मास कम्युनिकेशन इज वन कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं ना, तो वी आर इन सोशल मीडिया, एंड सोशल Yes, मीडिया में मास कम्युनिकेशन होता है. मास कम्युनिकेशन में जो सच है वो झूठ बन जाता है, जो झूठ है वो सच बन जाता है, क्योंकि मास बोलती है. अब तुमको लॉ Hmm. अलाउड है, लेकिन मास चिल्ला चिल्ला के बोलती है नहीं तुमको अलाउड नहीं है, तो वो झूठ बन गया. आप समझ रहे हो ना? Hmm. कॉमन पब्लिक Hmm. वही सोचती. आप क्यों नहीं करते? आप इतना ज्यादा मास कम्युनिकेशन कर दो कि आपको अलाउड है, कि हर कॉमन आदमी भी समझने लग जाए नहीं इनको अलाउड है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाएगा. प्रियंका Actually, मैडम, प्रियंका मैडम actually, sir, the awareness regarding the medical legal knowledge is lagging. You know, the best thing is that it should be included in our syllabus during the PG. As per my concern, this is lagging where we are lagging actually. The perfect knowledge about the medical legal aspects in our fraternity is very less, and that's why you people we need every time to guide us for this purpose. Inga madam, I know you personally. You have taken a lots of effort to educate the people and to take all this awareness and Menias program and all. Educate your people to make awareness in social media. Let them Yeah. let them highlight their laws which has been Yes. given by Maharashtra government to in their favor. Let them bombard that. Every doctor start doing it, become a mass communication. Once it becomes mass communication, you will not struggle with all this. The people who are sitting in maternal mortality Yeah. committee also will definitely going to believe on mass communication. So, Yeah. so answer lies with you only. Mhm. Always 100%. remember, 100%. every problem comes with a solution, and solution within us. We search a solution outside. Please don't search outside. Yes. Yeah, Solution yeah. is within. That's why for the NIMA OBGY stands for that. Oh, so great. और सर आपसे सुनो Last का 2 question लेना खाली, because I have got some meeting at 10:30 Okay, okay. sorry Sir, 9:30 के बाद में, तो 2 sir, question और ले लो. हाँ most बिल्कुल. important question. प्रियंका, मैं आई एम सॉरी, हाँ. आपने मेरे को 1.5-2 घंटे का प्रॉमिस लिया था, लेकिन कुछ हम्म. इमरजेंसी आई हुई है. आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट सेशन में जो बचा कुछ ले लूंगा मैं आपके. कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं. Sir, sir, हाँ, most sir, important sir. question. Most important question, sir. Indemnity. Please guide us about the indemnity, how it works, and please throw some light on it, sir. मैं आपको फिर से बोलता हूँ, हम लोग आज तक यहाँ वहाँ भागते रहे हैं. आपकी नीमा ने भी टाइप किया है और डॉक्टर्स रिस्क के साथ टाइप किया है. मैं बता दूं आपको, आपके सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं. हम न्यू इंडिया एश्योरेंस से हमने लिखा के लिया है, एंड न्यू इंडिया आपके पॉलिसी पे लिख के देती है एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में. मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए? बट वी डोंट Yes, बिलीव इट. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सब लोगों से, 2 चीजें याद रखना डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, सिविल कोर्ट के लिए. एक तो मेडिको लीगल एक्सपर्ट की सर्विसेज, जैसे डॉक्टर्स रिस्क मेडिको लीगल सर्विसेज आपको एक्सपर्ट की सर्विस देता है. वो क्यों चाहिए? क्योंकि इंडेमनिटी आपकी काम में आती है जब आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाता है. और जब केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो ऑलवेज रिमेंबर माय फ्रेंड, इट बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट, एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी पोस्टेड ऑन इंटरनेट, एंड पीपल विल लर्न अबाउट यू, एंड यू कैन नॉट फाइल अ डिफेमेशन केस, एंड यू विल लूज योर रेपुटेशन एंड पेशेंट. सो एक लाइफ में मेरी पहली बात याद रखना, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अवॉइड लिटिगेशन अगेंस्ट यू. मतलब लिटिगेशन कोर्ट तक नहीं जाए इसकी पूरी कोशिश करना. उसके लिए यू नीड अ मेडिको लीगल एक्सपर्ट. आप प्री लिटिगेशन में कभी कोई नोटिस आ जाए, पेशेंट आपके साथ हंगामा करके जाए, you know it is potent litigant, call your medical legal expert, understand, make your medical record foolproof by auditing a medical record, be prepared, answer the notice in such a way that it should not go to the court of law. ये सब इंडेमनिटी में कवर्ड नहीं है. इट इज द मेडिको लीगल एक्सपर्ट सर्विसेज.
अंडरस्टैंड कि हाउ टू हैंडल द सिनेरियो सिचुएशन एट दिस स्टेज ड्यूरिंग लिटिगेशन। ड्यूरिंग मतलब आप ओटी में हो और कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आप किसको कॉल करोगे? इंडेमनिटी इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगी वो टाइम पे। यू कॉल योर मेडिको लीगल एक्सपर्ट, एक्सचेंज योर वीडियो रिकॉर्ड ऑन वेरियस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिफोर डिक्लेयरिंग डेट। मेक योर पेपर फुल प्रूफ, बिकॉज पुलिस आगे ही देना पड़ जाएगा, क्या करोगे आप? So make your paper foolproof. Understand how to declare a death, how to convince a patient. Understand from them कि how to speak to the reporters, because reporters are going to judge. ये सब चीजें आपको एक्सपर्ट मेडिको लीगल या मेडिको लीगल सर्विस प्रोवाइडर ही दे सकता है। आप उसको कॉल कीजिए। पोस्ट लिटिगेशन, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, एडवोकेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको नेफ्रोटॉक्सिसिटी नोटॉक्सिसिटी पूछ के देखो, आप एस्पेक्सिया हाइपोक्सिया पूछ के देखो। यू नीड टू एक्सप्लेन। आपके पास वक्त नहीं रहता, आप प्रैक्टिस में बिजी रहते हो। Have a medical legal service provider so that it can be a bridge between you and court. Always look that your matter must be argued by any expert in a medical legal field. क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आर्ग्यू करता हूं मैटर, सडन क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल एडवोकेट आंसर नहीं दे पाते। मेडिकल बैकग्राउंड में एक एग्जांपल देता हूं कि मैं बेल लेने गया था, मेरे एक डॉक्टर का ही, हमारा ही आयुष का ही डॉक्टर था, उसने एमटीपी किया था, एलिगेशन एमटीपी किया था, डीएनसी मैंने क्लेम किया था, उसको 1 साल से बेल नहीं मिल रही थी। सिर्फ एक ही रीजन से बेल नहीं मिल रही थी कि हाईकोर्ट को, जब हाईकोर्ट में मैं गया था, वो रीजन देखा मैंने, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने वो पिक्चराइजेशन किया कि हाथ पैर बांधा था, हाथ बांधा था, पैर बांधा था, डॉक्टर कुछ तो भी कर रहा था, एंड जज को तो मालूम नहीं है। जज तो बोलता हीनियस क्राइम है। एंड देन आई बीइंग अ डॉक्टर इमीडिएटली सेड, पॉज लेके मैं बोला, सर दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लिथोटॉमी पोजीशन। एंड जज ने मेरे को इमीडिएटली बोला, इज इट टेक्निकल? आई सेड इट इज टेक्निकल, आई विल सबमिट ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट। मेरे को एक डेट दिया उसने, नेक्स्ट डे व्हेन आई सबमिटेड ऑल मेडिकल डॉक्यूमेंट, ही गॉट अ बेल। मैं आप क्यों बता रहा हूं कि बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट दैट एडवोकेट विल नो ऑल दिस थिंग्स and you are not there in court to explain. So have a medical legal expert, medical legal service provider who can save you at any given scenario situation. Any types of notices can be answered, defamation can be answered, everything can be done. वो खत्म होने के बाद this is to avoid a case. Now second step, अगर केस हो जाए, चलो सब कोशिश कर लिया, केस हो गया, तो घर बेचना नहीं पड़े। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉट हैविंग इंडेमनिटी इज फाइनेंशियल सुसाइड, क्योंकि अब मेरे पास केस है, सीजेरियन डेथ के लिए 30 करोड़ डिमांड किया, इंजेक्शन एब्सेस के लिए 28 करोड़ डिमांड किया है, गायनिक में 5 करोड़ कॉमन हो गए हैं। मतलब आपका डिमांड एक अलग एंगल पे जा चुका है, क्योंकि मल्टीपल जजमेंट आ गया है जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अपर लेवल इज नॉट देयर। अब लेटेस्ट जजमेंट आ गया हाउसवाइफ के बारे में, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मालूम नहीं, कि हाउसवाइफ के डेथ के लिए चूंकि उनको सैलरी सर्टिफिकेट नहीं रहती है, कोर्ट ने बोला मिनिमम 30,000 टू बी कंसिडर्ड एज अ सैलरी विद एवरी 3 years 10% इंक्रीमेंट, बिकॉज हाउसवाइफ डज एवरीथिंग विच एम्प्लॉई डज इन ऑफिस। ये जजमेंट आ चुका है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कंपनसेशन गोइंग टू बी इन करोड़, बिलीव मी माय फ्रेंड। एंड आउट ऑफ, अगर आप 10 पेशेंट भी देखते हो, आई एम जस्ट गिविंग अ मोस्ट लिबरल काउंट, तो भी आप कम से कम कुछ नहीं कुछ तो 30 दिन में 300 पेशेंट देखते हो, 12 महीने में भी देखोगे तो 3,600 पेशेंट देखते हो। क्या एक सदमा नहीं आ सकता? आप प्रोबेबिलिटी देखो आप। और अगर आप इंडेमनिफाइड नहीं हो और कोर्ट ने कंपनसेशन दे दिया, तो आपको हॉस्पिटल बेचना पड़ेगा माय फ्रेंड। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है टू एवरी डेलीगेट्स हियर, प्लीज कवर योर, अपने ईगो में मत रहो। मेरा रिक्वेस्ट है, कवर योरसेल्फ विद द प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी एंड टू द पॉलिसी विच कवर्स योर प्रैक्टिस। मैं रिकमेंड करूंगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जो डॉक्टर्स रिस्क के साथ टाइप किया, एमओयू करके लिया हमने, और वही मैंने नीमा को भी दिया है। तो आपके सेंट्रल नीमा के साथ टाइप है। आप नीमा के स्टॉलवर्ड को अगर पूछोगे तो नीमा के पास टाइप किया हुआ रेट्स है पूरे इंडिया के लिए। आशुतोष सर के पास मिलेगा, मैडम के पास भी मिलेगा, वो एग्रीमेंट किया हुआ है। आप लीजिए ना, आपके सस्ते में आपको मिल रहा है, और वो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है। हॉस्पिटल अगर आप ओन करते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल पॉलिसी निकालो, क्योंकि लॉज आ चुके हैं वेयर 90% लायबिलिटी गोज ऑन हॉस्पिटल। कोर्ट ने क्या बोला है, क्रेनियल सर्जरी में न्यूरो सर्जन को 20,000 मिलता है, कॉर्पोरेट को 4 लाख मिलता है। तो लायबिलिटी भी उस तरह होनी चाहिए ना। अब आपके यहाँ पीडियाट्रिक आते हैं, आपके एनेस्थेटिक आते हैं, आपके यहाँ गायनिक आते हैं, आपके यहाँ मेडिसिन आते हैं, आपके यहाँ बर्ड, आप मल्टीपल रिस्क में हो। ऑलवेज रिमेंबर, इफ एट ऑल यू आर प्रैक्टिसिंग ओनली इन योर हॉस्पिटल, तो न्यू इंडिया ने क्या बोला है कि देन यू नीड नॉट हैव टू हैव अ 2 पॉलिसी। आपने हॉस्पिटल ले लिया, आप कवर्ड हो जाओगे। बट इफ यू आर अ विजिटिंग कंसल्टेंट, देन हैव योर इंडिविजुअल पॉलिसी ऑल्सो।
लॉ ने क्या, न्यू इंडिया ने क्या बोला है कि अगर आप हॉस्पिटल पॉलिसी लेते हो एरर ओमिशन, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड स्टाफ, वी आर गोइंग टू कवर ऑल ओनर्स, मेडिको नॉन मेडिको कोई भी ओनर हो, वी आर गोइंग टू कवर ऑल विजिटिंग कंसल्टेंट टू दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ कैशलेस पॉलिसी टू यू, वी आर गोइंग टू गिव द बेस्ट सर्विस टू यू, the moment order comes we are going to pay it, we are going to provide a complete legal fees across the country, कि आपका केस मान लो कश्मीर भी गया, क्योंकि नया लॉ बोलता है एनीवेयर कैन बी फाइल्ड, कश्मीर में जान दो, काठमांडू में जान, सॉरी आपका कर्नाटका में जान दो, लीगल फीस कवर्ड है, एडवांस टेक्नोलॉजी कवर्ड है, कैशलेस दिया है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट दिया है। एक केस में अब उन्होंने मॉप छोड़ दिया था, कोर्ट इंश्योरेंस को लगा कि मेरे को भरना पड़ेगा, उसमें उसने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट 12 लाख में किया एंड डायरेक्टली पेमेंट किया। कहने का मतलब कि व्हेन यू गॉट अ पॉलिसी विच इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्टेड पॉलिसी एंड इट इज अवेलेबल विथ नीमा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल डेलीगेट्स, प्लीज पहले पेशेंट देखने के पहले यू अपने आप को हॉस्पिटल कवर कर लो एरर ओमिशन पॉलिसी में और इंडेमनिटी पॉलिसी में, मिनिमम 1 करोड़। आपका कॉस्ट कितना जाता है? मेरे को लगता है 12-15 हजार भी नहीं जाता होगा, 10-12 हजार भी नहीं जाता होगा साल का। उसके अंदर आपका मेडिको लीगल सर्विस भी कवर्ड है, उसके अंदर आपका इंडेमनिटी भी कवर्ड है, कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आप आज विजिलेंट नहीं होगे तो कल आप लाखों देके जाओ। मेरे पास आते हैं ना people who are not covered paying me lakhs of rupees. I have handled multiple cases, but that time they will very happily pay. जब यहाँ तक आता है तो we don't see a money, we just wanted to safeguard ourselves. So उसके लिए precaution is better. And good question, Srikanth, and to all my delegates, my humble request, please cover yourself with a professional indemnity policy which covers your integrated practice, and please cover with medical legal expert services, because they know you are legally allowed to do and they can defend you very well in a court of law without any haste. And if you do that, rest assured सिविल नेग्लिजेंस में आपका कुछ नहीं होगा, सिर्फ वकालतनामा साइन करना है, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं। हार भी गए तो इंश्योरेंस कंपनी लीगल फीस देगी, कंपनसेशन देगी, जीत गए तो इंश्योरेंस कंपनी लीगल फीस देगी, आपका कुछ जाना नहीं, आपको कोर्ट में भी जाना नहीं। Yes. Okay. तो ये सेशन का यही इन सिंगल लाइन ये कि लीगल परमिशन ले लो, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करो और बाकी की चीजें मिश्रा सर पे छोड़ दो। थैंक यू वही थैंक यू जैसे फॉर ट्रस्टिंग मी, as थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग। वैसे as we भी टाइप है तो वैसे भी छूटने वाले आप तो है नहीं हमारे परेशानियों से। भाई मैंने क्या बोला, इसलिए तो प्रियंका मैडम आपको बोला कि आपके लोगों को बोलो टीमा ने टाइप किया तो सब लोग जुड़ जाए मेरे साथ, मैं आपको पूरा प्रोटेक्शन दूंगा, डरो मत। थैंक यू सर। Thank you very much, and thanks to all the delegates, and thank Priyanka madam for inviting me for session, and सर इसका thanks Balaji and सेकंड Srikanth for होगा, making some अभी preparation, क्वेश्चंस and खत्म whole नहीं हुए Nima हमारे। team। क्या बोल रही प्रियंका जी? सॉरी, मैंने कहा क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए, अभी तो स्टार्ट हुए हैं, तो सेकंड हाँ तो एपिसोड होगा अगले सेशन में मैंने आपको प्रॉमिस किया ना, अगले सेशन में मैं ले बिल्कुल लूंगा। आप बिल्कुल yes बिल्कुल। इस सेशन में क्या कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके ऑडियंस है ना, उनसे फीडबैक ले लीजिए, और मैं भी चाहूंगा, मैं भी स्नेहा को बोलूंगा कि सारे ऑडियंस को कॉल करके उनके टेस्टिमोनियल लीजिए, तो अगले लेक्चर के लिए मैं मोटिवेटेड रहूंगा, एस्पायर्ड हम रहूंगा। क्वेश्चन चलते अगर मेरे हैं। को मोटिवेट सर नहीं किया गया तो मुझे लगेगा लेक्चर खराब हुआ है, तो अगले लेक्चर में आप डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सारे डेलीगेट से रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ 70 लोग हैं यहाँ पे, 70 लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्नेहा का कॉल आ जाए ना तो एक वीडियो टेस्टिमोनियल दे देना या ऑडियो टेस्टिमोनियल दे देना या एक टेस्टिमोनियल दे देना, so that I get inspired for another session. I can deliver a good and good law to you all, including Srikanth, Balaji, and Priyanka ma'am and all your team. That thank is you my Thank Guru you, thank you, Dakshina. sir. आपके प्रपोज से So हम give a thank इंतजार you होते हैं testimonial, सर। so that is Guru Dakshina which I get inspired for another session for you all. डेफिनेटली। sir वो मैं देख रहा हूँ मुझ बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, बट आई वांट दैट चैट बॉक्स तो गायब हो जाएगा, लेकिन आपका टेस्टिमोनियल परमानेंट मेरे पास रहेगा। yes स्नेहा को मैं बोल दूंगा, शी विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू ऑल। Yes, sir. yes Yeah. Yes, I'll connect. So thanks a lot anything sir for else? such a Thank you And this very session much. we are going to put on our YouTube channel also, sir. yes, Yeah, please. You are most welcome. I don't mind. Yeah, thanks thank you. for such Thank a you so much, sir, for your time. Thank you. And I'm sorry, Thanks थोड़ा a मैं lot. जल्दी निकल रहा हूँ, but I promise I'm going to be with you all for next session, and I'll take out time for that session. Thank you. बिल्कुल thank you sir बिल्कुल। for Yeah. Thank you. Thank you. thanks Okay, thanks And sir good for night. such Thanks a a lot. Yeah. Thank you to all enlightening delegates. session And Nima session. Yeah, please, Srikanth, complete कर लो. Sorry. sir thanks for such an enlightening session but picture अभी बाकी है stay tuned thank you sir Thank you. Thank you. Yes, good. So, with all your permission, can we close?
Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Thank you. Have a nice Thank day. you. Thanks. Thank you. Thank you Thank you. everyone for Thank you, joining. Priyanka ma'am. ओके Thank Yeah. you, मैं Balaji रिकॉर्डिंग sir. भेज दूंगा मैडम आपको. Yes, sir. स्नेहा आपसे कनेक्ट होकर रिकॉर्डिंग भेज देगी. स्नेहा यू कैन. Bilkul. Yes, I'll connect with ma'am tomorrow and share the link. ओके. Yeah. Okay, dear. Yeah. So स्नेहा you. Okay, so I'll just log out for everyone, okay? Yeah. I'll Yeah. end. Thank Okay. you. Thank you, Sneha. Thank you, Shrikant. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you so so Balaji. much, much. Priyanka ma'am. Bye. Thank you, Balaji sir. See you soon. Yes, sir.